Hello students, let us revise the lesson cell by reading NCERT. वैसे टीचिंग के वक्त हमने NCERT पढ़ा ही है, लेकिन जब पूरा लेसन हम कर चुके हैं तो हमको रिलेशनशिप डेवलप करना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम कैसे अलग है, राइट, और अलग अलग चीजें हैं जो हम अब बहुत कुछ जान चुके हैं. जब हम बहुत कुछ जान चुके हैं, सीख चुके हैं, तो फिर से सेल का चैप्टर का रिवीजन करेंगे, एक एक शब्द को जान लेंगे, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन 1 to 1 लाइन ऑफ एनसीईआरटी. सो एनसीईआरटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ना, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होगा और अपने आप हायर लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगेंगे. सो एवरीवन इज यूजिंग रीडिंग बुक अलॉन्ग विथ मी, राइट. यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे आपको चैप्टर लाके दिखाया है. जब मैं बोलूंगी कि बच्चों क्लास वर्क खोलो और क्लास वर्क पढ़ेंगे, वो टाइम आप बाजू में क्लास वर्क भी निकालेंगे, राइट. सो एवरीवन रेडी विथ एनसीईआरटी पेन एंड योर क्लास वर्क, राइट. दिस रिवीजन विल बी फास्ट, तो आप फोकस करके सुनोगे. सी नाउ, cell, the unit of life. The lesson itself, this name lesson itself is giving you clear idea that this is the smallest unit which can remain alive. So it is cell, the unit of life. When you look around, you see both living and non-living things. Living things are made up of cells, cellular organization. Living things are conscious. Living things perform metabolic reaction. Living things show intrinsic growth, and living thing can reproduce, right? These are the differences between living and non-living thing. When you look around, you see both living and non-living thing. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? You know this. What makes an organism living? The basic properties just now I enlisted, which we discussed in lesson living world, right? So वहां पे हमने living मतलब क्या, नॉन लिविंग से वो कैसे अलग है, उसको हमने बेसिकली जान लिया. The answer to this is presence of basic unit of life, the cell, in all living organisms. Okay, अब देखो, लिविंग नॉन लिविंग वर्ल्ड दोनों केमिकल्स से बने हैं, लेकिन सेल में जो केमिकल है उनके इंटरेक्शन की वजह से, उनके यूनिक मेटाबॉलिज्म की वजह से वही केमिकल का ग्रुप यूनिट लाइफ बन गया. लेकिन वो केमिकल जो नॉन लिविंग थिंग्स में है वो लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, right? Okay, so living world, non-living world, both are made up of chemicals, but the chemicals which are present in living world, biomolecules, they come together, form specific arrangement, which we have discussed even in plasma membrane, how lipid and protein are entangled and make a living selectively permeable plasma membrane, which is stretchable and maintains homeostasis. So यही केमिकल है, लिपिड प्रोटीन नेचर में भी रहेंगे, लेकिन जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए जुड़ते हैं तो उसमें अलग प्रॉपर्टीज आते हैं. प्रोटीन की प्रॉपर्टी अलग, लिपिड की प्रॉपर्टी अलग, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वो जुड़ गए तो दोनों को मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास लाइफ आ गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बन गया जो लिविंग है. All organisms are composed of cell. All organisms are basically made up of cell. This point we have discussed in cell theory. Some are composed of single cell, are called unicellular organism, while others like us, Homo sapien, we are, right, multicellular, composed of many cell, are called multicellular organism. So यहाँ पे हम underline करेंगे. There are mainly two type of organisms, right? See, unicellular organism and multicellular organism. These are the mainly two types of organisms, right? Now what is a cell? Next one. Okay, just imagine कि साइंटिस्ट ने जिसने सबसे पहला सेल देखा था, उसने माइक्रोस्कोप के नीचे सेल देखने के बाद उसने क्या क्या पता करने की कोशिश की होगी, क्या सोचा होगा, वो वर्ल्ड में जाके थोड़ा सोचिए.
What is a cell? The question to the scientist who is firstly observing a cell under microscope. Unicellular organisms are capable of one independent existence. बैक्टीरिया है, अमीबा है, राइट, उसके लिए खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. देन परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. व्हाट आर द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ? रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, एक्सक्रीशन, गैसेस को अंदर लेना, गैसेस को बाहर डालना, बराबर. ये इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है. ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी करता है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी करता है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल लाइफ फंक्शंस लाइक respiration, protein synthesis, DNA replication, cell division. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent life. Right? बहुत important line है. See, anything less than complete structure of a cell does not ensure living. मतलब सेल से थोड़ा भी कम, कुछ भी कम हो जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता. सो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट, विच इज स्मॉलेस्ट एंड कंप्लीट structure which is essential for life, right? Hence the cell is fundamental structural and functional unit of life. Structural unit मतलब सेल को जोड़ जोड़ के मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनाए. सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल, राइट. फंक्शनल यूनिट मतलब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो जिंदा रहने के लिए प्रोसेसेस करवाता है, रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ग्रोथ है, सेल डिवीजन है, वो एक सिंगल सेल भी करता है. सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के फंक्शन बीइंग अलाइव और सेल के फंक्शन बीइंग अलाइव सेम, राइट. और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को हमको सबसे छोटे स्ट्रक्चर में अगर तोड़ना है तो हमको सेल मिलेगा. सो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हेंस cell is the fundamental structural functional unit of life. एंटनी वॉन लुइनहॉक. चलो क्लास वर्क निकालो. मैंने आपको साइंटिस्ट के नाम की लिस्ट बना के दी थी और उसके आगे हमने उनके पूरे कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखे थे. निकाला एनसीईआरटी. सब साइंटिस्ट के नाम पढ़ लो. पढ़ लिए? नाउ वर्क विथ मी. सी, एंटनी वॉन लुइनहॉक फर्स्ट सॉ and describe a live cell. जिंदा सेल देखने वाले एंटनी वॉन लुइनहॉक पहले साइंटिस्ट है. रॉबर्ट ब्राउन सेकंड साइंटिस्ट का नाम है. रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. यहां पे मैंने और एक साइंटिस्ट का नाम आपको लिख के दिया था, रॉबर्ट हुक, who first observed dead cell, right? So Robert Hooke observed dead cell. Anthony von Leeuwenhoek observed living cell. Robert Brown later discovered nucleus in a living cell. The invention of microscope and improvement leading to electron microscope related all the structural details of cell. जैसे हमको न्यूक्लियस पता चला, फिर माइक्रोस्कोप हम मॉडिफाई करते गए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप करने के बाद हमने सेल के अंदर के छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स को अच्छे से जान लिया. राइट. नाउ कम टू सेल थ्योरी. जब हम सेल के बारे में पता करने लगे तो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी नाम का एक कॉन्सेप्ट रखा. सेल, व्हाट इज थ्योरी? थ्योरी इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन फ्यू इन्वेस्टिगेशंस एंड रिजल्ट्स. राइट. थ्योरी हर कंडीशन में करेक्ट हो, राइट, ये जरूरी नहीं है, बट थ्योरी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिए वाला एक्सप्लेनेशन है. इन 1838 मैथ्यू शेल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट. हमने कैसे लर्न किया था? याद है आपको कैसे लर्न किया था? जर्मन बॉटनिस्ट शेल्डन, ऐसे बोला था ना हमने. सो मैथ्यू शेल्डन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plant cell and observed that all plants are composed of different kinds of cell. Okay? याद है हमने एक एक पॉइंट साइंटिस्ट के आगे क्लास वर्क में लिखा था. So what we'll write down? That Matthew Sheldon, German botanist, first studied plant cell. At about the same time, Matthew Sheldon 1938, वही टाइम थियोडर श्वान
right? A British zoologist, Theodore Schwann, a British zoologist. हमने कैसे बोलना है? Matthew Sheldon, German botanist. German Matthew Sheldon. British Schwann, British zoologist Schwann, studied different types of animals cells and reported that cell had a thin outer layering. Okay, अब यहाँ पे शेल्डन ने प्लांट सेल सीखे तो श्वान ने एनिमल सेल पे इन्वेस्टिगेशंस किए, राइट? सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? शेल्डन स्टडीड plant cell, Schwann studied animal cell, and along with that Schwann suggested that animal cell's outermost covering is a thin layer. Now we call it as plasma membrane, which is today known as plasma membrane. He also concluded, based on his studies on the plant tissue, that presence of cell wall is unique characteristic feature of plant cell. राइट? देखो, मैथ्यू शेल्डन और जर्मन मैथ्यू शेल्डन और ब्रिटिश श्वान दोनों ने एक ही टाइम पढ़ाई की, राइट? एक ने प्लांट सेल की स्टडी की, दूसरे ने एनिमल की, राइट? श्वान ने बोला एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उन्होंने और एक बात बोली कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होना ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सो presence of cell wall is unique character of plant cell was suggested by Schwann. On this basis, Schwann proposed a hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cells and their product. देखिए, अब देखो यहाँ पे दो शब्द आप डील कर रहे हो. एक पहले हमने बोला सेल थ्योरी, और अब हम यहाँ पे शब्द यूज कर रहे हैं हाइपोथेसिस. व्हाट इज द डिफरेंस? देखो, साइंटिस्ट होने के लिए कुछ मेथड फॉलो की जाती है. ओके, डिटेल में पढ़ने के लिए कुछ मेथड फॉलो की जाती है. सबसे पहला स्टेप है क्लियर ऑब्जर्वेशन, अच्छे से ऑब्जर्व करो. दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन के साथ आपके पास कुछ क्यूरीज रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे. वो क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट के आधार पे आपके पास कुछ आंसर्स रहेंगे जो सच रहेंगे या झूठ रहेंगे. एक्सपेरिमेंट के बलबूते पे आपने जो प्रोबेबल आंसर्स ढूंढे उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस. और हाइपोथेसिस को बार बार चेक करने के बाद एक प्रूवन कॉन्सेप्ट जो आगे आता है उसको हम बोलेंगे थियरी. सो ब्रॉडली स्पीकिंग और इन सिंपल लैंग्वेज विल से हाइपोथेसिस मॉडिफाइड फर्दर टू गिव अस अ थियरी, राइट? सो देखो, बहुत अच्छी लैंग्वेज है एनसीईआरटी की, थोड़ा समझ के चलना है. Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animal and plants are composed of cell and their product. Okay, चलो अब थोड़ा आगे का याद करो. सेल मतलब हमने क्या क्या बोला था, राइट? सेल का फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने आपको, राइट? सेल का फॉर्मूला चलो देख लो. सेल का फॉर्मूला, प्लांट सेल इज इक्वल टू सेल वॉल प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. इसमें का लिविंग कंटेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. ये लिविंग कंटेंट को हमने शब्द यूज किया था प्रोटोप्लाज्म. और सेल का प्रोडक्ट सेल वॉल इज अ डेड मटेरियल. सो प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ लिविंग कंटेंट प्रोटोप्लाज्म and its product cell wall, which is a dead component. Okay, each and every word will link and give you clear idea about the further concepts. Sheldon and Schwann together formulated the theory, right? दोनों ने पहले अलग अलग पढ़ाई की, फिर दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी. This theory, however, did not explain how new cells are formed. This is demerit of the theory. मैंने अभी बोला थ्योरी मतलब हाइपोथेसिस मॉडिफाई करके थ्योरी होती है, लेकिन थ्योरी में कुछ लेक्यूनाज होते हैं, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, कंडीशन के अनुसार वो बदलती है. तो श्वान और शेल्डन के सेल थ्योरी में एक पॉइंट मिसिंग था. demerit of first cell theory given by Schwann and Sheldon, that it doesn't explain how new cells are formed. So this is further, cell theory was further modified by Rudolf Virchow in 1855. First explained that the cells divide and new cells are formed from pre-existing cells, which is called omnis cellulae cellula. Right? So Schwann-Sheldon theory के cell theory के postulates, all organisms are made up of cell. Cell are basic fundamental structural functioning unit of life.
Plant cells outermost covering is cell wall. Animal cells outermost covering is plasma membrane. Presence of cell wall is characteristic feature of plant cell. These are the postulates of Schwann and Sheldon cell theory. उसका demerit क्या था? They couldn't explain how the new cell is formed from the pre-existing one. So this theory is modified by Rudolf Virchow, and he added that new cell is produced by cell division of mother cell. नए सेल, ये पुराने सेल, पेरेंटल सेल का डिवीजन होके बनते हैं और उसके लिए जो जो चीजें लगती है वो पूरे के पूरी सेल के अंदर बनती है. इंट्रिंसिक ग्रोथ, right? He modified the hypothesis of Schwann and Sheldon to give the cell theory a final shape. Give a cell theory a final shape, right? ये शेप में ये जब फाइनल उन्होंने किया उसमें उन्होंने कौन से पॉइंट ऐड किए? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स. ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, राइट? नाउ ओवरऑल व्यू, अगर हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे 5 किंगडम में, याद है यहाँ पे मैंने आपको 5 किंगडम सिखाए थे. 5 किंगडम सीक्वेंस कैसे लर्न किया था हमने? बोलो मेरे साथ. मोनेरा मोनेरा, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, फंगाई फंगाई, प्लांट प्लांट, एनिमल एनिमल, राइट? मोनेरा मोनेरा, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा, फंगाई फंगाई, प्लांटी प्लांटी, एनिमेलिया एनिमेलिया. ये पूरे सारे के सारे 5 किंगडम के सेल का अगर हम ओवरऑल व्यू देखेंगे तो हमको ये पॉइंट्स नजर आएंगे. सी, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इज एन ओनियन पिल. आपने स्कूल डेज में ओनियन पिल को हैंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखा होगा, और ह्यूमन चिक सेल अंडर माइक्रोस्कोप. आपने आपके स्कूल में कुछ सेल आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाए होंगे. लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर. थोड़ा याद करो, याद आ रहा है क्या? ओके, राइट. सी, द ओनियन सेल व्हिच इज टिपिकली प्लांट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल एट इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट अ सेल मेम्ब्रेन. अगर लिविंग सेल देखेंगे तो आउटर सेल वॉल दिखेगा, अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा और अंदर एक छोटा डॉट न्यूक्लियस दिखेगा, जो हमने फॉर्मूला में भी लिखा है. The cell of human chick has outer membrane as a delimiting is boundary. जिनको ये शब्द दिक्कत जाती है बच्चे, आप लोग डिक्शनरी यूज करेंगे. Delimiting is a limiting membrane, outermost covering. Structure of the cell. Animal cell का outermost delimiting membrane plasma membrane है. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. हर लिविंग सेल के अंदर एक डेंस स्फेरिकल बॉडी रहेगी जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, राइट? दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए. चलो सब लोग क्लास वर्क निकालो. मैंने जेनेटिक मटेरियल के लिए आपको 2 लेक्चर सुनाए थे, बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनो, फिर से सुनो. हमने बोला था जेनेटिक मटेरियल डीएनए. देखो पहली डायग्राम, हेलिकली कॉइल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लिनियर इन यूकैरियोट्स, सर्कुलर इन प्रोकैरियोट्स. दिस डीएनए इज बुक ऑफ लाइफ. इसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पैकेजिंग करता है, कॉइलिंग करता है. कॉइलिंग के लिए पहले हिस्टोन यूज करता है, तो न्यूक्लियोसोम फाइबर बनता है टेलीफोन के वायर जैसा, राइट? मैंने क्या बोला था? टेलीफोन की वायर न्यूक्लियोसोम, राइट, हिस्टोन के फुटबॉल के साथ बाइंड हो गई, ओके, कॉइल हो गई, तो हमको मिला न्यूक्लियोसोम फाइबर. वो फिर से कॉइल होगा तो बनेगा सोलेनॉइड फाइबर, फिर से कॉइल बनेगा क्रोमैटिन फाइबर, और फुल्ली कॉइल्ड हो जाएगा तो क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम का हमने केमिकल कंपोजिशन लिखा था, क्लास वर्क पढ़ रहे हो ना? क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्लस आरएनए. इसमें का चारों केमिकल में का जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्रोमोसोम में ये चारों केमिकल है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, राइट? चलो come to the screen. You are reading book with me, right? मेरे कर्सर पे ध्यान देंगे आप लोग. See, the cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas that lack membrane bound nucleus are prokaryotic. चलो, ये शब्द को हमने बिल्कुल शब्द छल करके देखा था. यहाँ पे कौन से शब्द को देखा था हमने? EU means true. U means true. कैरियो मतलब न्यूक्लियस. जिसके पास सच में न्यूक्लियस है वो है यूकैरियोटिक. सच का न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग क्या बोला था हमने? द ट्रू न्यूक्लियस हैज मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर पोर, फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, dense spherical body in the nucleus, nucleolus,
एंड क्रोमैटिन मटेरियल। ऐसे डिस्टिंक्ट अगर पार्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, अगर ये पूरे पार्ट है तो उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। अगर ऐसा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है तो न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो गया। तो प्रिमिटिव मतलब प्रो, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, राइट। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला प्रोकैरियोट, ट्रू न्यूक्लियस वाला यूकैरियोट। और एक बात है, प्रोकैरियोटिक सेल के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, यूकैरियोटिक सेल के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, राइट। हमने डिफरेंसेस भी लिखे थे। चलो, in both prokaryote and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities. ये लाइन पे अटक जाते हो। Cellular main arena. Arena is area. It is main location where cellular activities, metabolism, chemical reaction occurs. साइटोप्लाज्म के फ्लूइड में और साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनेल में। साइटोप्लाज्म में कौन से ऑर्गेनेल है? ईआर, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइट। सो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल भी डूबे हुए होते हैं, बराबर। तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ ऑर्गेनेल इंक्लूडेड है। इनके पास मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इट इज मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी in both plant and animal cell. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in living state. देखो, property of being alive, which is performing metabolic reactions. Besides the nucleus, the eukaryotic cell have outer membrane bound, another membrane bound distinct structure called organelle, like ER, which is multifolded. Right? ER is multifolded, Golgi complex multifolded, lysosome one single layered, mitochondria double layered, microbodies single layered, vacuole single layered. Right? So ये सब जो ऑर्गेनेल है, वो सब ऑर्गेनेल क्या करेंगे? सेल के अंदर फंक्शंस करेंगे, राइट। इन प्रोकैरियोट सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोट के पास सिर्फ राइबोसोम है, राइट। ये राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। राइबोसोम इज जस्ट एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरआरएनए, राइट। So membrane bound organelle, that two double membrane bound organelle are found in eukaryote, absent in prokaryote. Ribosomes are non-membrane. Yeah, see here, underline this. Organelle found in all living cell, prokaryote as well as eukaryotes. Within the cell, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within two organelle. Organelle in organelle. याद करो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इसको हमने सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोला था। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद का डीएस सर्कुलर डीएनए है, राइट। अलोंग विद दैट इसके पास राइबोसोम्स है, राइट। सो सेल ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम, राइट। दे आर फाउंड इन few organelles. So two organelles, chloroplast in plant, mitochondria, right, are having these ribosomes in it. और रफ ER के सरफेस पे राइबोसोम रहेंगे। Animal cell contain another membrane bound organelle called centrosome, which help in cell division. Centrosome को याद करो, centrosome का फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने। Centrosome has two rod shaped structure, centriole present at 90 degrees, surrounded by a fluid and astral rays, right? So centrosome होना ये animal cell की प्रॉपर्टी है, right? और उनका फंक्शन है it help in cell division. Centrosome का फंक्शन है it help in cell division. Right? Now come to the diagram of different cells. See, this is human RBC biconvex. Right? ऊपर से फ्लैट दिखेगी और ये अंदर का ऐसा ग्रूव है, संकन पार्ट। ओके, ऊपर से देखे तो ऐसे दिखेगी, साइड से दिखा तो ऐसे दिखेगी। दिस इज लाइक we'll say top view and this is a side view. Right? This is RBC. Human RBC की peculiarities क्या सीखी थी हमने? It doesn't have nucleus at maturity. Okay, why? Nucleus occupies major space. So nucleus निकाल दिया, उसकी जगह हीमोग्लोबिन रख दिया और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, राइट, डिटरमाइन करता है। ज्यादा हीमोग्लोबिन, ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। So this is structural modification found in human RBC or all RBCs which carry oxygen. This is WBC, soldier cells, right?
आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, इसको व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं, सोल्जर सेल्स, राइट. सो दीज आर irregular in shape, they can change their shape and their nuclei shape is not round, and on this basis they are classified. So details you study in zoology. ये है बॉडी के कवरिंग करने वाले सेल, राइट. दे आर कवर करने वाले इसलिए रेक्टेंगल है, कॉम्पैक्टली अरेंज है और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. ये पूरा नर्व सेल है, ये इंपल्स ट्रांसपोर्ट करता है. सो ये लॉन्ग है, इट कैन बी इवन 1 मीटर लॉन्ग नर्व सेल. ये प्लांट का वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाला ट्रकिड्स है, राइट. आपने प्लांट के लिए जाइलम फ्लोएम शब्द सीखे होंगे. ये जाइलम का एक प्रकार है ट्रकिड, और ये है प्लांट के लीफ का सेल. मेसोफिल, ये शब्द मैंने आपको बोला था, मेसोफिल, मिडल पार्ट ऑफ द लीफ. मेसो मिडल, फिल लीफ, राइट. सी द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ओके, कौन सा भी, मुर्गी का अंडा है, राइट, ऑस्ट्रिच का अंडा है, वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, राइट. ओके, लार्जेस्ट सेल जो नेकेड आइज से भी दिखता है वो है ऑस्ट्रिच, शाहमृग, उसका अंडा. अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन रेड सेल are about 7.0 mu micron in diameter. Nerves are some of the longest cell, maybe 1 meter long. Cell also vary greatly in their shape. They may be disc shaped, polygonal. Okay, disc जैसे है, polygonal है, column like है, cube जैसे, cuboid. मैंने बोला था oid मतलब like, right? मैंने बोला था oid मतलब like, thread like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform, right? Shape may vary with the function they perform, right? Okay, then come to prokaryotic cell. आपको प्रोकैरियोटिक सेल समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती होगी, लेकिन रिवीजन करोगे आसानी से समझ जाओगे. सी, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस. द प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय, एग्जांपल कौन से है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा, राइट. ये ब्लू ग्रीन अलगा के बाजू यहाँ पे ऑब्लिक देके लिख लो, यहाँ पे ऐसे ऑब्लिक देके लिख लो, BGA, ब्लू ग्रीन अलगा का शॉर्ट फॉर्म, कैपिटल B, कैपिटल G, कैपिटल A. और एक शब्द है सायानोबैक्टीरिया, CYANO, सायानोबैक्टीरिया. सो ब्लू ग्रीन अलगा, BGA, सायानोबैक्टीरिया, ये शब्द ध्यान में रखेंगे. Mycoplasma and PPLO. अब actually Mycoplasma and PPLO are same thing. Okay, so and की जगह हम इनको और भी कह सकते हैं, right? So there are varieties, we'll discuss, right? PPLO का लॉन्ग फॉर्म है Pleuropneumonia like organism. They are greatly smaller and multiply more rapidly than eukaryotic cell. Prokaryotic cell eukaryotic cell से बहुत छोटे हैं और उनका सेल डिवीजन उनके कंपैरिजन से बहुत रैपिड होता है. They may vary greatly in shape. The 4 basic shapes of bacteria are bacillus, rod shaped, elongated होते हैं, coccus, spherical, right, spherical, ball जैसे होते हैं, vibrio, आप जो कॉमा देते हो, right, and spirula like spring, आपके पेन का स्प्रिंग होता है ना, that is spiral. The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and functions. All cells are fundamental unit of life performing same metabolism, right? उनके स्ट्रक्चर में अंतर है, right? सिंपल है, लेकिन बेसिक एक्टिविटी मतलब डीएनए रेप्लिकेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ओके, ये सब प्रोकैरियोट सेल भी करता है, यूकैरियोटिक सेल भी करता है. सी ना, राइट, दिस इज टिपिकल यूकैरियोटिक सेल. इससे बेहतरीन डायग्राम हमने देखी है, ड्रॉ भी की है, राइट. ये देखो बैक्टीरिया, राइट, टिपिकल बैक्टीरिया सेल, उसका साइज लिखा है, ये साइज ध्यान में रखेंगे हम, राइट. सी, टिपिकल बैक्टीरिया का साइज है 1 to 2 म्यू माइक्रोन, पीपीएलओ का है अबाउट 0.1 माइक्रोन, राइट, और उससे भी बहुत छोटे हैं वायरसेस. आर यू गेटिंग द कंपैरिजन, राइट. सो वायरस को हम सेल नहीं बोलते क्योंकि वायरस के पास साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस नहीं होता, राइट. सो वायरस इज जस्ट हैविंग जेनेटिक मटेरियल एंड कवरिंग. ओके, वायरस खुद इंडिपेंडेंटली मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करता,
तो इसके लिए हम उसको लाइफ नहीं बोलते, वी कॉल इट एज इट इज ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ। सेल के बाहर है तो वो जस्ट केमिकल है, सेल के अंदर आया तो वो लिविंग है। डायग्राम देखिए सब लोगों ने अच्छे से। सी, prokaryotes have cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. Underline. Mycoplasma are the only prokaryotes which don't have cell wall. Right? Okay. Cell wall surrounds the cell membrane except mycoplasma. The fluid matrix filling the cell is cytoplasm. There is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked. What is naked? Without nuclear membrane, without histone, right? Without complete packaging, right? So not enveloped. Why it is naked? Because it is not enveloped. इसके पास nuclear membrane नहीं है. So MCQ can be framed. The genetic material of prokaryotic cell is called naked because it is not having nuclear membrane. It is not covered. In addition to genomic DNA, ये शब्द ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दिया था। Genome is number of DNA present in egg sperm gametes. Genome मतलब एग स्पर्म गैमेट में जितने डीएनए होते हैं उसको बोलते हैं एक जीनोम, राइट? ओके। और जनरल बॉडी सेल के पास होते हैं 2 जीनोम। ये डेफिनेशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत टीचर लोग आपको समझाते नहीं है, लेकिन यहां से हम समझते चलेंगे। ये डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है इसलिए छोड़ देना बराबर नहीं है। इस पे क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेशन पूछेंगे। सो व्हाट आई सेड, genomic DNA is main DNA. Genome is mainly number of DNA present in gametes. The single chromosome, circular DNA, बराबर। प्रोकैरियोट में मेन डीएनए क्या है? सर्कुलर DS, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। मेनली बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए। यहाँ पे और एक शब्द ऐड करेंगे आप, यहाँ पे लिख लो DS circular DNA, double stranded circular DNA. Right. Outside the genomic DNA, there is small DNA called plasmid. ये प्रोकैरियोट की peculiarity है। मेन क्रोमोसोमल डीएनए, जीनोमिक डीएनए मेन लाइफ रेगुलेट करेगा, मेन लाइफ प्रोसेसेस रेगुलेट करेगा। जिंदा रहने के लिए क्रोमोसोमल डीएनए जरूरी है। कुछ एडिशनल फीचर के लिए ये प्लाज्मिड होता है कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के पास, राइट? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज अगेन स्मॉल DS सर्कुलर डीएनए. इट कैन रेप्लिकेट एंड इट हैव इंफॉर्मेशन फॉर सम वर्क. ये भी डीएनए है तो इसके पास भी काम करने की क्षमता है। काम कैसे करेगा? डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए प्रोटीन बनाएगा। सो जीनोमिक डीएनए भी काम करता है, लेकिन लाइफ के मेन प्रोसेसेस रेगुलेट करता है। प्लाज्मिड काम करता है तो कुछ एडिशनल काम रेगुलेट करता है, एडिशनल फंक्शनिंग रेगुलेट करता है। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स। प्लाज्मिड की वजह से कुछ यूनिक फेनोटाइप मतलब विजिबल कैरेक्टर्स, राइट, जो माइक्रोस्कोप के नीचे आपको दिखाई देंगे टू सच बैक्टीरिया, राइट? ओके, कुछ कैरेक्टर प्लाज्मिड की वजह से ऑर्गेनिज्म को आती है। One such character is resistant to antibiotic. कुछ प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। So, we will discuss about plasmid, its role in next lecture, in next higher classes. Right now you are supposed to remember the prokaryotic cell have 2 types of DNA, chromosomal DNA, genomic DNA, essential for being alive, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जिसका नाम है प्लाज्मिड, right? If that plasmid is present, some additional properties, additional features, additional phenotypic characters like antibiotic resistance can be found in prokaryote. यहाँ पे मैंने आपको और 2 प्रकार के प्लाज्मिड का टाइप बताया था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, क्लास वर्क रेफर कर रहे हो ना?
Antibiotic resistant plasmid is called R plasmid, right? Conjugation जैसे प्रोसेस को हेल्प करने वाली प्लाज्मिड will be F plasmid and some plasmids are Ti plasmid. Some plasmids are Ti plasmid, right? So now, in higher classes, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation. Transformation का literal meaning है permanent change, right? See, आपके पास दो प्रकार के बैक्टीरिया है. एक बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड नहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन भी नहीं. दूसरा बैक्टीरिया जिसके पास प्लाज्मिड है, उसमें जुड़ा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. अगर आपने ये प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करके, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, राइट, रेप्लिकेट करके और एक प्लाज्मिड बनाया और दूसरे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया, तो वो बैक्टीरिया भी खुद में परमानेंट बदलाव लाएगा, खुद को ट्रांसफॉर्म करेगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो उसके पास पहले नहीं था वो उसमें परमानेंटली आ जाएगा. I repeat, in higher classes you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. एक बैक्टीरिया से डीएनए निकाला, दूसरे बैक्टीरिया में वो डाला, तो वो बैक्टीरिया के लिए वो फॉरेनर है. फॉरेनर डीएनए की वजह से वो होस्ट बैक्टीरिया जिसने डीएनए लिया वो खुद में परमानेंट चेंज लाएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. नो ऑर्गेनेल लाइक द वन इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम. ओके, ये तो डिफरेंसेस हमने लिख ही लिए हैं. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स. प्रोकैरियोट में और एक पेक्युलरिटी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यूनिक कैरेक्टर है, उसके सेल इंक्लूजन, राइट. सो व्हाट आर इंक्लूजन्स? आर सम डेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन अ सेल, राइट. इंक्लूजन बॉडीज हम इसके अंत में सीखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंत में. अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन called mesosome is characteristic feature of prokaryotes. अब देखो यहाँ पे मैंने जब माइटोकॉन्ड्रिया सिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया is site of aerobic respiration, right? Prokaryote doesn't have mitochondria, but still the prokaryotic cell which is not having mitochondria is undergoing the process of aerobic respiration. In that situation, instead of mitochondria, the bacteria have primitive structure like a mitochondria called mesosome. Mitochondria जैसा primitive structure जिसके पास membrane नहीं है, well defined structure नहीं है, लेकिन aerobic respiration करने के basic enzymes, basic requirements है, वैसे primitive माइटोकॉन्ड्रिया जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक आउटग्रोथ जिसको हम बोलेंगे मेसोसोम. सो प्रिमिटिव माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर मेसोसोम, क्लोरोप्लास्ट लाइक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर. माइटोकॉन्ड्रिया जैसा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर मेसोसोम, क्लोरोप्लास्ट जैसा प्रिमिटिव स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is characteristic feature of prokaryote which help in aerobic respiration. They are essentially infoldings of plasma membrane. What are mesosome? Mesosome is a primitive structure like mitochondria. लेकिन ये structurally क्या है? देखो, ये अंडरलाइन करो, ये अंडरलाइन करो, यहाँ पे एरो दे दो. What is mesosome? Mesosome का definition, mesosome का structure. Mesosome is infolding of cell membrane. It is performing, इसके आगे लिख लो, function aerobic respiration. Mesosome का function aerobic respiration, right? See now.
सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। सेल इन्वेलप, मैंने सेल का फॉर्मूला लिख के दिया था आपको। सेल इन्वेलप्स आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट? outermost glycocalyx, cell wall, plasma membrane. प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंगल सेल, उसके पास डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो उसके पास इन्वेलप सिस्टम ज्यादा डेवलप रहेगी, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेल इन्वेलप्स, different layers which are protecting a prokaryotic cell. Most prokaryotic cell, particularly in bacterial cell, have a chemically complex cell envelope, right? Underline. प्रोकैरियोटिक सेल का सेल इन्वेलप यूकैरियोटिक सेल के सेल इन्वेलप से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्स, राइट? ओके, यहाँ पे फिर से भी काम करेंगे हम। कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, यहाँ पे एरो कर दो नीचे, यहाँ पे 3 नंबर लिख दो। इट इज 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। In prokaryote, complex envelope has 3 layered structure, that is outermost glycocalyx followed by cell wall and then the plasma membrane, right? Glycocalyx outermost, यहाँ पे लिखेंगे 1, cell wall यहाँ पे लिखेंगे 2, plasma membrane यहाँ पे लिखेंगे 3। हमेशा लेयर हम आउटर टू इनर ही लर्न करेंगे। सो सेल इन्वेलप इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, सेल इन्वेलप इज इक्वल टू first glycocalyx plus second cell wall plus third plasma membrane. Outermost glycocalyx, second one cell wall, third one plasma membrane, right? अब यहाँ पे MCQ अगर आएगा, which is the middle layer? Cell wall. Which is the innermost layer? Plasma membrane, right? Which is third from outside? Plasma membrane. Which is third from inside? Glycocalyx. Which is immediately enclosing cytoplasm? Plasma membrane. देखो ये सीक्वेंस जो हमने लर्न किया, 1 2 3 जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला पे इस प्रकार के MCQ आएंगे। Although each layer of envelope functions distinctly, हर लेयर का फंक्शन अलग है। ग्लाइकोकैलिक्स इज फॉर प्रोटेक्शन, राइट? सेल वॉल मैकेनिकल इंजुरी से प्रोटेक्ट करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है तो होमियोस्टेसिस रखेगा, राइट? और एक बात देखो, क्लास वर्क में आपने लिखी है, ग्लाइकोकैलिक्स के हमने 2 प्रकार सीखे थे। ग्लाइकोकैलिक्स विच इज होल्डिंग वाटर इज स्लाइमी लेयर, वो वाटर को एब्सॉर्ब करके लिखेगा। और दूसरा हमने बोला था कैप्सूल, कैप्सूल इज अ टफ स्ट्रक्चर विच इज प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स और हाईली रेजिस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट? अब यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अगर सेल वॉल टफ है तो एंटीबायोटिक अंदर ही नहीं जाएगा और बैक्टीरिया को बचाएगा। अगर सेल वॉल नहीं है या एंटीबायोटिक अंदर कैसे वैसे पहुंच गया तो सेल के अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है वो एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देगी और बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। समझ रहे हो? सो these are 2 different things. The outermost glycocalyx formed by cell wall, then the plasma membrane, followed by cell wall, then the plasma membrane. Although each layer of envelope perform distinct function, they act together as a single protective. तीनों का मिलके फंक्शन क्या है? Function of cell envelope is it is single protective unit which is tri-layered. Each has different function, but basically it is for protection. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of difference in cell envelope and manner in which they respond to staining procedure developed by scientist Gram. This is name of scientist Gram. Okay, हमने लिखा है क्लास वर्क में, Gram scientist developed Gram staining. हमने अच्छे से क्लास वर्क में लिखा है। यहीं पे बाजू कच ज्यादा लिखोगे तो बाद में कुछ नहीं समझता। ओके, बुक पे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिटेल में इंफॉर्मेशन क्लास वर्क में लिखेगी। क्लास वर्क हमारे मेन नोट्स है। ओके, बुक और नोट्स एक ही जगह, खिचड़ी मत पकाओ। जब डिटेल पढ़ाई करनी है क्लास वर्क देखना है, रैपिड रिवीजन करनी है ये एनसीईआरटी और यहाँ पे बने फ्लो चार्ट्स।
राइट। या फिर मैं क्लास वर्क में आपको जो सिंपल भाषा में लिख के देती हूँ वो। तो हमारे पास बच्चों पूरा इंफ्रा तैयार है, राइट। हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार हम एक एक यूज करेंगे, राइट। क्लास वर्क की क्वालिटी पे ध्यान देना, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रखना, ओके। ज्यादा यहाँ पे लिखोगे तो वो पढ़ने को बाद में दिल नहीं करता, और जब एग्जाम है कल सर पे और यहाँ पे और कंफ्यूजिंग लिखा है आपने, तो वो ग्रास्प करने में भी दिक्कत होती है। हमारे फ्लो चार्ट्स, हमारे डायग्राम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, कितने भी जल्दी में देखो, हमारे कंफ्यूजन उसने दूर करने हैं, ना कि यहाँ पे खिचड़ी पका के कंफ्यूजन बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ बेसिक बातें लिखेंगे। साइंटिस्ट ग्राम डेवलप्ड ग्राम स्टेनिंग, राइट। यहाँ पे लिख रहे हो साइंटिस्ट ग्राम डेवलप्ड ग्राम स्टेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल केमिस्ट्री, राइट। चलो क्लास वर्क निकालो। क्लास वर्क में मैंने आपको ग्राम स्टेनिंग की मेथड लिख के दी थी। बैक्टीरिया लिया, स्लाइड पे उसको चिपका दिया, उसके पहले हमने आफ्टर स्मीयर, इट इज कॉल्ड स्मीयरिंग, ग्लास साइड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मीयर किया, उस पे क्रिस्टल वॉयलेट कलर का वॉयलेट स्टेन डाला, ऑल द सेल्स विल बी नाउ वॉयलेट। देन वॉश इट विथ वाटर, wash it with alcohol. After alcohol wash, what will happen? Some cell will retain the purple color, violet color. Some will lose and they become colorless. Right? At this level, if you watch the slide under microscope, you can see only purple cells and not the colorless cell. So as to highlight colorless cell, now pour safranin. Now pour safranin. Right? And safranin is a pink stem, राइट। सो जिन्होंने कलर छोड़ दिया वो पिंक कलर पकड़ के रखेंगे, जिन्होंने कलर छोड़ दिया वो पिंक कलर पकड़ के रखेंगे। अब उस स्लाइड पे आपको पर्पल कलर, वॉयलेट डार्क, राइट, और पिंक कलर, ऐसे दो सेल दिखेंगे। जो पर्पल कलर का है उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो पिंक कलर का है उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। इनके सेल वॉल में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल ऑफ gram positive and gram negative, we'll discuss in revision class of cell, right? So gram developed differential staining technique on the basis of cell wall chemistry. Come here. Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It would be loose sheath called slime layer in some, while in other it may be thick and tough called capsule. Smooth slimy layer है, राइट, स्मूथ म्यूकॉइड है तो स्लाइमी लेयर। इसका काम है, यहां पे लिख देंगे, हेल्प इन वाटर होल्डिंग एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। स्लाइमी लेयर होल्ड वाटर, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। कैप्सूल टफ, प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। The cell wall determines shape of the cell and provide a strong structural support to prevent bacterium from bursting or collapsing. ये हमने सेल वॉल का फंक्शन प्लांट सेल में भी सीखा था, याद है। सेल वॉल इज आउटर मोस्ट टफ डेड कवरिंग। अगर सेल के अंदर पानी बहुत गया, राइट, तो वो फट नहीं जाएगा क्योंकि सेल वॉल उसको बाहर से पकड़ के रखेगा। अगर सेल के अंदर का पानी बहुत कम हो गया तो सेल श्रिंक भी नहीं होगा क्योंकि सेल वॉल इज रिजिड, राइट। इट वोंट अलाउ सेल टू बर्स्ट, इट वोंट अलाउ द सेल टू कोलैप्स एंड दैट्स व्हाई मेंटेन द शेप। यहाँ पे डैश देके लिखो, इट मेंटेन्स शेप। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable in nature, interact with outside world. This membrane is similar structurally to that of eukaryotes. Okay, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट का सेम है, लिपोप्रोटीनियस, सिलेक्टिवली परमिएबल, राइट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, राइट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये शब्द याद आ रहे हैं ना। ओके, आगे भी देखेंगे, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में करता है वही सब प्रोकैरियोट में भी करता है। नाउ स्पेशल स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग मतलब साइटोप्लाज्म में घुसने वाले, राइट। अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर is mesosome which is formed
by extension of plasma membrane into the cell. These extensions form vesicle, tubules and lamellae. Okay. लैमेली है तो वो पैरेलल रहते हैं, ट्यूब्यूल रहते हैं तो ऐसे प्रोट्रूडिंग होते हैं, वेसिकल रहे तो ग्लोबुलर रहते हैं. ओके, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही अलग अलग प्रकार है. डिपेंडिंग ऑन शेप हम उसको सर्कुलर है, स्पेरिकल है तो वेसिकल बोलेंगे, डक्ट लाइक है ओपनिंग वाले तो ट्यूब्यूल बोलेंगे, और पैरेलल वॉल से बने हैं तो लैमेला बोलेंगे. दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. सो मेसोसोम के फंक्शंस मैंने आपको लिख के दिए थे. Mesosome help in cell wall formation, then DNA replication and distribution to daughter cell. DNA replicate करके उसको दो बेबी सेल में बांटने का काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स करते हैं. They also help in respiration. यहाँ पे शब्द डालना aerobic secretion processes to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. More the foldings, more will be the surface area available. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into protoplasm, into cytoplasm called chromatophores. Primitive chloroplast is chromatophore which contain photosynthetic pigment. यहाँ पे डैश देके लिखो आगे. Perform photosynthesis. Perform photosynthesis. Right? Mesosome, primitive mitochondria like, help in aerobic respiration. Chromatophore, primitive chloroplast like, help in photosynthesis because they have pigments, photosynthetic pigment. Bacterial cell may be motile or non-motile. Motile है तो उसके पास prokaryotic flagella रहेगा. If motile, they have thin filamentous extension from their cell wall called flagella. यहाँ पे लिखेंगे आप prokaryotic flagella, which is different than eukaryotic flagella. Bacteria show a range in number and arrangement of flagella. हमने जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला सीखा उससे ये फ्लैजेला दिखने में अलग है. Bacterial flagellum is composed of three parts. It is filament, hook and basal body. याद है हमने प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला और यूकैरियोटिक फ्लैजेला के डिफरेंसेस लिखे थे. वहां पे हमने बोला था प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला हैज थ्री पार्ट, filament, hook and basal body. Eukaryote has the basal plate and the filament. यहाँ पे 9+2 का अरेंजमेंट नहीं है. यूकैरियोट में 9+2 का अरेंजमेंट है. The filament is longest portion and extension from the cell surface to outside, right? And main function of flagella is locomotion. Besides flagella, पिलाई फिम्ब्रेई. क्लास वर्क निकालो. पिलाई फिम्ब्रेई के डायग्राम देखो. पिलाई short protruding structure, right? Fimbriae is like finger-like appendages, branched. Fimbriae work like a holdfast. Substratum को कोई स्ट्रक्चर को पकड़ के रखने के लिए फिम्ब्रियाe काम करेंगे. पिलाई are for conjugation. Conjugation is a primitive sexual reproduction like process. दो बैक्टीरिया के सेल पिलाई की हेल्प से एक दूसरे को जुड़ जाएंगे. Two bacterial cell will get connected to each other with the help of pili and then they go for exchanging genetic material. Right? उनका genetic material exchange होगा और नए प्रकार के बैक्टीरिया बनेंगे. Right? So this is pili helping in primitive sexual reproduction like process called conjugation. लिख लो यहाँ पे pili help in primitive sexual reproduction like process, that is conjugation. Fimbriae act as a holdfast.
The villi are elongated tubular structure made up of special protein. Right? Villi, फिलामेंट, ये सब अलग अलग प्रकार के प्रोटीन से बने हैं. प्रोटीन के हजारों लाखों प्रकार होते हैं. The fimbriae are small bristles like fibers sprouting out of a cell. वो फिंगर लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर है, सेल से बाहर आते हुए सपोर्ट के लिए काम करेंगे. इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू होस्ट टिश्यू. अगर स्ट्रीम में कोई बैक्टीरिया है, फ्लोइंग वाटर में है, उसको अगर रॉक को खुद को चिपक के रखना है तो फिम्ब्रिए से काम करेगा. आपके बॉडी में पानी के साथ एक आधा बैक्टीरिया चला गया, उसको चाहिए कि आपके थ्रोट के सेल को चिपक के रखना है, तो वो फिम्ब्रिए से आपके थ्रोट सेल को, होस्ट सेल को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा. नेक्स्ट पार्ट, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल. राइबोसोम्स आर इन कांटेक्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम ईआर के साथ थे और साइटोप्लाज्म में भी थे, तो यहाँ पे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है और साइटोप्लाज्म में भी है. They are about 15 nanometer to 20 nanometer in size and are made up of two subunits 50s and 30s. राइबोसोम हमने डिटेल में सीखे थे. लार्जर सबयूनिट, स्मॉलर सबयूनिट, classified on the basis of Swedberg constant. What are these? This Swedberg constant is dependent on size and density of the ribosome. साइज बड़ी है, डेंसिटी ज्यादा है, तो ये नंबर बड़ा होगा. साइज छोटी है, डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे ये नंबर छोटा होगा. So ribosomes are of two types in prokaryotes: smaller subunit, larger subunit. They come in contact with mRNA and prepare protein. 30s, 50s unit which when present together form 70s. प्रोकैरियोट को दोनों जुड़ के, प्रोकैरियोट के सेल में एमआरएनए के साथ अगर दोनों जुड़े हैं तो उनका स्वेडबर्ग कांस्टेंट 70s होगा. As I told you, 50 plus 30 is 70 is not the case. It is about the sedimentation constant. Right? Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome, polysome. निकालो क्लास वर्क. देखो मैंने पॉलीराइबोसोम का, पॉलीसोम का डायग्राम उतार के दिया है आपको. It help in protein synthesis. The ribosomes of a polysome translate the mRNA into protein. mRNA की इंफॉर्मेशन लेके प्रोटीन बनाने का काम राइबोसोम करेंगे. Right? So ribosomes are called protein factories. ये प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के काम करने में कोई अंतर नहीं है, बस उनके ये जो स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, उनकी साइज और जो डेंसिटी है वो प्रोकैरियोट में छोटी है, यूकैरियोट में ज्यादा है. Come to inclusion bodies. Dead material. Reserve material in prokaryotic cell are stored in cytoplasm in form of inclusion body. Right? Reserve material. स्टार्च का ग्रेन है, राइट, साइनोफाइसियन ग्रान्यूल है, फॉस्फेट का ग्रान्यूल है, साइटोप्लाज्म में पड़ा है, उसको मेम्ब्रेन नहीं है, एंड इट मे बी रिजर्व मटेरियल. राइट? सो ऐसे जो डेड इंक्लूजन सेल के अंदर पड़े हैं उसको बोलेंगे इंक्लूजन बॉडीज. राइट? ये सॉलिड होगा, कभी गैसेस होंगे, अलग अलग केमिकल है. इंक्लूजन बॉडीज में केमिकल रहेंगे जिनको मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं रहेगा. रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड in the cytoplasm in form of inclusion body. These are not bounded by any membrane system and lie free in cytoplasm. They don't have any membrane and freely present in cytoplasm. Example, phosphate granule, साइनोफैसियन ग्रानुल, ग्लाइकोजन ग्रानुल. ये केमिकल के नाम है. राइट? ये केमिकल के नाम है. Gas vacuoles are found in blue-green alga and purple and green photosynthetic bacteria. Right? Those bacteria performing photosynthesis are having the gas bubbles trapped in cytoplasm. So those are called gas vacuoles, which are a type of inclusion body. These gas vacuoles of prokaryote are not having any membrane. Right? So here we completed revision of prokaryotic cell.